Hello everyone, are here to discuss the chapter magnetic dipole. मैग्नेटिक डाइपोल इसका मतलब ये है कि हमने एक चार्ज को रख दिया माइनस क्यू चार्ज को तो वही एक मोनोपोल बन सकता है। प्लस क्यू चार्ज को रख दिया तो मोनोपोल हो गया। और प्लस और माइनस को एक साथ रखा तो वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है। इन अ सिमिलर वे, इफ वी प्लेस्ड a kind of a material or object having magnetic field and it behaves as a magnetic dipole, it means two poles are present over here. Here electric dipole projecting from emitting from negative charge and eliminating on the positive charge. Here is a position d vector is drawn, having have to find the electric dipole moment at a point p. How we will find? So we know that at this point p we will have two electric field in two direction along radial direction and the equatorial position. P is a what P is equal to Q times D. D is the separation between the charges, which is very small. Okay, so electric dipole moment. What is the formula of electric dipole moment? 2 kp cos theta upon r cube. Here, the electric field along radial direction is 2 kp cos theta upon r cube. And what along the tangential direction? This is the tangential basically. So electric field in tangential direction is minus kp sin theta upon r cube, because this here electric field is opposite to the applied electric field because the direction of applied electric field in this direction and tangential electric field in this direction. It means having electric field in tangential direction is opposite to the applied electric field. Okay, अगर हम बात करते हैं मैग्नेटिक डाइपोल, if we are discussing about magnetic dipole, here a bar magnet we know that have two poles south and north. Here at a point P making angle theta with the axis of magnet, so what will be here same like electric dipole. Here is also magnetic dipole. Magnetic dipole along radial direction is what, and what about tangential direction? We know that magnetic dipole moment is mu times t. What about mu? That is pole strength. Here Q is basically charge, or we can say that charge strength. What is the strength? It means 2 coulomb and 10 coulomb. So 10 coulomb has more charge strength rather than 2 coulomb. Okay. So at radial direction, magnetic field is 2 mu naught upon 4 pi cos theta upon r cube. M is magnetic dipole moment. That is mu times d vector. Okay. और we are discussing that tangential direction के about हमारा magnetic field की value mu naught m sin theta upon 4 pi r cube. If you observe these two formula here, this part is same. To B axial at axis magnetic field is twice at that of place of equatorial, yani equatorial position. It means the magnetic field value at equatorial position will have twice the magnitude as of equatorial position. Okay, here is also applied for the what electric field at axial position. The value of magnet electric field will be twice at the case of what इक्वेटोरियल पोजीशन पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है उसकी वैल्यू से दुगनी कहाँ पे मौजूद है, एक्सियल पोजीशन पे। मैग्नेटिक डाइपोल क्या होता है? तो मैंने देखा कि मैग्नेटिक डाइपोल अगर दो पोल्स बनते हैं तो उनके बीच में फील्ड्स एग्जिस्ट करती हैं, और उस फील्ड के कारण किसी पॉइंट पर, किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पी पर कितनी ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डेवलप होती है, उसी को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के एक्सप्रेशन से डिराइव करते हैं। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ड्यू टू बार मैग्नेट म्यू टाइम्स टी, वेयर म्यूज magnetic, where mu is the pole strength and d is the separation between the poles. Here we know that for the bar magnet the pole is inside between the it means the actual length of magnet will not be the separation of the poles, because the poles are slightly inside the bar magnet. Okay,
Current carrying loop is the ideal example of magnetic dipole because यहाँ पर जो हमारे पास पोल्स होते हैं, एक तरफ से अगर हम इस डायरेक्शन से अगर हमारा करंट क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड होगा, और इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण क्या होता है उस केस में हमारा जो होता है एक नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ से साउथ पोल बिहेव करता है। अगर हम बात करते हैं किसी भी एट सेंटर ऑफ लूप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अगर पैरेलल है किस चीज़ के, मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस केस में क्या होता है, तो सेम एज इट हियर अगर मैंने बोला कि एक मैंने क्लोज्ड कर्व्स ले लिया, लूप ले लिया जिसमें से आई करंट पास हो रहा है, तो उस केस में हमारा टेंजेंशियल डायरेक्शन में और रेडियल डायरेक्शन में क्या मैग्नेटिक फील्ड होंगे, तो उसकी वैल्यूज ये है सेम इन द केस ऑफ व्हाट हियर वी हैव डिस्कस्ड व्हाट इज इन केस ऑफ बार मैग्नेट। अगर हम बात करते हैं, अगर हमारा थीटा जो क्या है किसी भी पी पॉइंट से किसी भी पी पॉइंट से इंक्लिनेशन है, तो उस केस में अगर हमारा थीटा की वैल्यू tan इनवर्स √3 होता है, तो हमारा जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के परपेंडिकुलर होता है। इन सिमिलर वे अगर यहाँ पर हमारा थीटा का वैल्यू tan इनवर्स √2 है, तो उस केस में रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट P इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। सेम गोज हियर। अगर हम बात करते हैं कि हमने ऐसा सुना होगा स्मॉलर क्लासेस में कि एक मैग्नेट हमने लिया और उस मैग्नेट को जब हमने तोड़ दिया तो वो फिर से हमारे पास दो इंडिविजुअल मैग्नेट्स के फॉर्म में अपीयर होते। इट मीन्स व्हाट, from one magnet we have created a two magnet. Yes, it is reality, but their strength is going to decrease. Here a general question is asked, if a magnet is broken into two pieces and there is alignment in this way, what will be the value of resultant magnetic dipole moment? It means that to find the resultant magnetic dipole moment, m/2 will be their individual dipole strength. Okay, तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स का इंक्लिनेशन 90 डिग्रीज पे है तो उनका रिजल्ट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, तो उनका रिजल्टेंट क्या होता है √2 टाइम्स हो जाता है। और नहीं तो हमें फॉर्मूला पता है √(a1)² + a2² + 2a1a2 cos थीटा से भी वैल्यूज फाइंड आउट हो सकती हैं। मैग्नेटिज्म इज अ डाइपोल फेनोमेना, मोनोडाइपोल डजंट एग्जिस्ट इन मैग्नेटिक फील्ड बेसिकली। इन जनरल सिचुएशन मोस्ट मटेरियल नॉन मैग्नेटिक। क्यों, हमें पता है कि किसी भी मटेरियल के अंदर अगर जनरल केसेस में तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी नहीं, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल हमारे पास मौजूद नहीं है। देयर इज नो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इन द एनवायरनमेंट, इट मीन्स द particle will remain same and no magnetic field induced inside the material, therefore the material will be the non magnetic। क्योंकि हमारे मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, क्योंकि हमारा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं, तो उसके कारण कोई भी मटेरियल नॉन मैग्नेटिक होता है। तो उस केस में हम कैसे जज करेंगे कि कोई भी हमारे पास मटेरियल पैरामैग्नेटिक है, डायामैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेटिक है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक्सपोज करेंगे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और फिर उसके पार्टिकल्स को स्टडी करके तब हम क्लासीफाई करेंगे। वी विल क्लासीफाई वेदर द मटेरियल इज गोना टू बी डाईमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। तो जब हमने ओनली आफ्टर एक्सपोजिंग टू एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड क्लासिफिकेशन कैन बी डन। तो ये हमारे पास मटेरियल है, हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड रख दिया, तो ये बी इंड्यूस मैंने इस डायरेक्शन में ओनली फॉर द schematically diagram, but it is not important induced direction. Here is written which is important. If induced magnetic field is opposite to direction of external magnetic field, okay, one of the situation is this, and also be induced magnetic field much smaller than external magnetic field, so the material is going to be diamagnetic and experiencing force of repulsion because of external magnetic field के कारण वो repulsion feel करेगा। कारण हम आगे देखेंगे। अगर भी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल हो जाए इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड को और उसकी वैल्यू इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बहुत ही छोटी होती है, तो उस केस में वो मटेरियल paramagnetic कहलाता है। Material is going to be paramagnetic and the material will experience feeble attraction, very less amount of attraction will have material। अगर induced magnetic field क्या होता है,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से पैरेलल है, एंड इन दिस वे induced magnetic field is much much greater than external magnetic field. The material is going to be ferromagnetic and strong attraction will going to have. Okay, a ring is rotating. We have discussed in earlier lecture that if a ring oh sorry, if a charge is rotating in a circular loop or in a circular trajectory having angular velocity omega, as we know that current is equal to net charge upon time taken, charge flown upon time taken. तो टाइम पीरियड क्या फॉर्मूला होता है, जैसे जब मैं 2 पाई अपॉन ओमेगा जब हमने रखा तो करंट की वैल्यू क्यू ओमेगा अपॉन 2 पाई आ गया, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हमारे पास है क्यू ओमेगा पाई आर स्क्वायर. This is going to be the value. And then after we are discussing the what are the cause to have a material doing diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic. तो first of all, इलेक्ट्रॉन में दो तरीके के मोशंस किए जाए. एक ऑर्बिटल, वो अपने ऑर्बिट्स में मूव करता है तो ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वो अपने ऑर्बिट के अराउंड स्पिन भी करते हैं. ये जैसे हमने गोल गोल इलेक्ट्रॉन मूव किया तो अपने जैसे अर्थ रिवॉल्व भी करता है सन के अराउंड, रोटेट भी करता है. इन अ सिमिलर वे इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग अराउंड न्यूक्लियस एज वेल एज spinning about its orbit. So here orbital motion as well as spin motion of electron. Dipole moment due to of spin movement as well as तो ये ऑर्बिटल के कारण डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा, स्पिन मूवमेंट के कारण डाइपोल मूवमेंट देखने को मिलेगा. तो पैरामैग्नेटिज्म, व्हाट इज द पैरामैग्नेटिज्म? जब हमारे पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो तो इलेक्ट्रॉन स्पिन एज पर इन केमिस्ट्री एटॉमिक स्ट्रक्चर पे विल से. तो इलेक्ट्रॉन स्पिन होता है, उस केस में क्या होता है, एटम मैग्नेट की तरह बिहेव करता है ड्यू टू डाइपोल इंटरैक्शन. ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या होता है, वो पैरामैग्नेटिज्म. पैरामैग्नेटिज्म मीन्स व्हाट काइंड ऑफ फीबल रिपल्शन बेसिकली, वहाँ पे बहुत ही कम रिपल्शन होता है. और अगर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, अगर हम इसमें टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर में एक्सपोज कर देते हैं तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड आपस में अलाइन कर देते हैं. फेरोमैग्नेटिज्म वो वेरी गुड कॉन्सेप्ट. ओनली आयरन कोबाल्ट नीडल shows ferromagnetic nature. It means here domain. It means the material is broken into very parts having atoms each domain. This is the domain having their alignment. It means here net magnetic field is zero. This will also be the non-magnetic material. But when it is exposed to the external magnetic field, things will going to be changed. How? The things will going to change because alignment will be different. Diamagnetic. Diamagnetic. Okay, we know that different many electrons are present in an atom having their orbital motion in this way. You can see in here. In this way, orbital motion can be seen. Okay, when एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज अप्लाइड, जब हमने इसमें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो इसकी इसमें डायरेक्शन जो होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का, वो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड का अपोजिट में हो जाता है. अपोजिट होने के कारण यही this is the reason that why diamagnetic material showing repulsion through external magnetic field. Diamagnetism is a universal phenomenon. Why it is a universal phenomenon? बेसिकली डायमैग्नेटिज्म में क्या होता है कि हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है वो डायमैग्नेटिक होता है. ऐसा इसलिए होता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अपना ऑर्बिटल मोशन को परफॉर्म करता है, जिसके कारण वो क्या होता है, वो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक्सपोज किया जाता है तो उस एक्सपोज होने के कारण एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर वो क्या करता है, वो अपना इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अपोजिट अलाइन करता है. उस केस में वो डायमैग्नेटिक की तरफ बिहेव करता है. तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी डायमैग्नेटिज्म इज अ यूनिवर्सल फेनोमेनन. वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट over here.